caste discrimination. It is like a continuous feeling of inferiority and superiority that has been brought. In ancient times, there was this fixation, and even a person who is bad but a Brahmin, low punishment. A person who is from lower caste, Shudras, small mistake, big punishment. Segregation, a kind of injustice. Now this historical injustice, historically, which had been there, I'm not talking of today, but the historical injustice that had been there has created a kind of a situation where upper castes have taken benefits of all the privileges they have had. They could study better, they could live a better life, they had better health, they had better political power. Even today, when you go to a, interior villages, if you see some zamidar level person, he'll sit on a chair and the person who is working under him will sit on floor. Still people won't eat their, share their foods with each other. Still. So these conditions which have historically been placed on certain castes, that is why the provisions were made to balance it after independence. And one of the mechanism was reservation. Reservation is what? Affirmative action. Affirmative action means it is government's effort to bring equality where there is no equality. X and Y में मजा नहीं आ रहा, कुछ नाम लिखते हैं अब इनके. सुरेश और महेश. सुरेश रूरल, महेश born in a rural setting, both money wise upper caste, privileges wise, political power wise, all of this. Now this person, Jajmani system, do you know Jajmani system? No. So lower caste, Jajmani system is a system whereby in olden times, lower castes were forced to do free labor, whereby for upper caste, and in return, so upper caste is the Jajman and the lower caste is the Kameen. Kameen means who does काम, the one who is doing work. So now Jajman will give food and basic amenities to this worker or lower caste, and this lower caste is forced to do free work in agricultural field, here, there, everything. And even if there is a small piece of land this person wants to till, he needs to take money from upper caste, Jajman. Now there is this in debt. किसने मदर इंडिया देखी है? मूवी देखी मदर इंडिया? क्या होता है उसमें? नहीं, ये तुम लोग मूवी भी नहीं देख कर आते हो. क्या करा तुम लोगों ने? पढ़ा तो अब हम देंगे, लेकिन पहले कम से कम मूवी देख लेनी चाहिए. चलो, मदर इंडिया में क्या होता है? जजमानी सिस्टम. दादा ने लोन लिया था, पोता तक बॉन्डेड लेबर तक काम करेगा क्योंकि वो चुका ही नहीं सकता. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सच, द सिस्टम इज सच. नाउ दिस बिकम्स अ बॉन्डेड लेबर थिंग. नाउ दिस इज फ्रॉम सच अ फैमिली. He is still paying interest and working for him. He wants to now get educated. He goes to the school, maybe his son, he goes to the school and wants to enroll his son or daughter, whatever. Now the principal says,
लोअर कास्ट को तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ाने की, तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? काम तो तुम्हें वही करना है, क्यों पढ़ना है तुमको? हमारे यहाँ नहीं है गांव में प्रथा के पढ़ाया जाए, है ना? तो वो फिर भी फाइट कर करके एडमिशन करा देते हैं। बच्चे को कहाँ बिठाया जाएगा? नहीं, चल, पुराने समय की बात कर रही हूँ, आज की नहीं कर रही हूँ मैं ये, है ना? हमें इनजस्टिस समझने के लिए तो पुराने समय को समझना पड़ेगा ना पहले। तो उसे नीचे बिठाया गया और उसको पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? दूर। सब चीजों के लिए दूर। क्या उसके ऊपर कोई ध्यान देगा टीचर? नहीं देगा। किताबें खरीद पाएगा क्या वो बच्चा? स्टेशनरी, ओके, ये खरीद पाएगा? है ना? इसके पास तो ट्यूशन भी है, घर पे आते पढ़ाते हैं इसको सर और मैडम जो भी। अब ये दोनों बच्चों का स्कूल हो गया। फिर पहले आया एंट्रेंस एग्जाम फॉर कॉलेजेस। 12th के बाद कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम कौन क्लियर कर पाएगा? महेश कर पाएगा, क्योंकि उसने तो ट्यूशन भी पढ़ा था, है ना? उसने तो, हाँ, ऑल द एमिनिटीज वर प्रोवाइडेड, एवरीथिंग, है ना? उसकी तो मम्मी भी एकदम रात को कॉफी बना के देती थी, नहीं नहीं तू पढ़ता रहे बेटा। लाइट भी थी, सब कुछ था। आपको लग रहा है इसके पास लाइट होगी बहुत ज्यादा? एसी? क्या इसको एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम करने जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा ना? क्यों जाना पड़ेगा? खाने को पैसे नहीं है, खाने तो अरेंज करना ही पड़ेगा ना। तो उस वक्त पे पढ़ाई इंपॉर्टेंट लगेगी या 20 रुपए? अच्छा, वैसे एग्रीकल्चरल फील्ड में भी जाना पड़ता है, ठीक है। अब एंट्रेंस हुआ, तो एंट्रेंस में कौन क्लियर करेगा? अब महेश बन गया आईआईटी ग्रेजुएट, तो इसको कितने की नौकरी लगेगी? इसका नहीं हुआ था, ये क्या करेगा? विल कंटिन्यू एज लेबर, इनइक्वालिटी परपेचुएट्स। इसका बच्चा कहाँ जाएगा फिर इसका बच्चा, समझ में आया? चलो, आपने रिजर्वेशन दिया, आपने कहा एससी वाले जितने कैंडिडेट्स हैं उनको 15% रिजर्वेशन है, तो इस रिजर्वेशन का फायदा उठा के किसी तरह मेहनत करके करा कुरू पे कैसे भी करके वो आ गया। फिर अगला स्टेप क्या आया? यूपीएससी का एग्जाम, अब ऑफिसर बनना है। अब आया यूपीएससी का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। फिर कैसे होगा? इसने तो ले ली थी यूपीएससी की कोचिंग, ये नहीं ले पाया था। आईआईटी में भी इसके साथ कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। न्यूज पढ़ते हो? ड्रॉप आउट रेट, अभी सब डेटा हम लोग बाद में, मैं ना आज एलएमएस पे कुछ आर्टिकल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, न्यूज आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं, रीड दोस टू अंडरस्टैंड दी कॉम्प्लेक्सिटीज। यूपीएससी, आईआईटी और प्रीमियर कॉलेजेस से ड्रॉप आउट रेशो ऑफ एससी कैंडिडेट्स इज द हाईएस्ट, and dropout is many times because of discrimination faced. This means even today, even after education, even after so much changes, still there is some kind of discrimination. Okay, अब यूपीएससी के लिए उसको रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि उसके यहाँ पे इसके पापा पैसे दे पाएंगे क्या? क्या इसकी एजुकेशन, ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, क्या इक्वल है? उसको ट्यूशन मिली और इसका क्या दोनों के बेस सेम है? तो क्या इसको थोड़ा सा लिवरेज मिलना चाहिए? मिलना चाहिए।
और ये कब तक मिलना चाहिए? जब तक सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी ना आ जाए, यानी कि ये सुरेश या फिर ये कम्युनिटी, ये सोसाइटी या ये जो ग्रुप है, ये हर जगह अपनी पॉपुलेशन के अनुपात में रिप्रेजेंटेड ना हो,